ਦਾ ਦੂਜਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਲਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਫੀਲਡ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ। ਨਾਓ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ k ਇਜ਼ ਸਮ ਫੀਲਡ ਔਰ k ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਲਡ ਹੈ और उस फील्ड दे विच S कोई सबसेट है, then any सब field K dash which is said to be generated by S, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ फील्ड ਨੂੰ S जनरेट कर रहा है अगर ये दो प्रॉपर्टीज ਨੂੰ सैटिस्फाई कर जाए। प्रॉपर्टी नंबर 1, S ਜਿਹੜਾ वो K डैश का सबसैट होना चाहिए। पहली गल जी K डैश साढ़े को सब फील्ड है वह सबसैट होना चाहिए। नंबर 2, फॉर एनी सब फील्ड ऑफ K, कोई भी अगर असी सब फील्ड लै लीए K दी सच दैट L जिहड़ा है इट कंटेनिंग S नू कंटेन कर रहे, then it implies L containing K, तो वो K नू भी कंटेन करे। वो साडे कोल L अगर S नू कंटेन कर रहा वो K डैश नू भी कंटेन करे, नॉट K, सो दैट इज ए K डैश। सो अगर इनू असी विजुलाइज करिए तो बिल्कुल क्लीयर सानू ये समझ आ रही है कि जिहड़ा K डैश है, वट इज K डैश, it is a smallest field of K, field of K containing S, यानी इस ढंग नाल containing S, यानी इस ढंग दे नाल असी इहदी smallest सब फील्ड लभ सकते हैं। smallest field की बजाय असी वर्ड सब फील्ड यूज करते हैं, सब फील्ड ऑफ के कंटेनिंग S। मतलब है कि अगर मेरे कोल आ K कोई फील्ड है, सो दिस इज सम K फील्ड, और इस फील्ड दे विच अगर मेरे कोल S सबसेट है तो K डैश भी साडे कोल सब फील्ड होएगी जनरेटेड बाय S, सो दिस इज जनरेटेड बाय S। और ये केड़ी प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करेगी? पहली गल तो K डैश जिहड़ा है वो S नू कंटेन करेगा, K डैश कंटेनिंग S, सो दिस इज सपोज K डैश। और दूजा पॉइंट की है कि जे होर कोई सब फील्ड L S नू कंटेन कर रही है तो वो K डैश नू भी कंटेन करेगा, और इनू असी इस ढंग दे नाल लिखांगे K डैश इज जनरेटेड बाय S, और इनू रिप्रेजेंट करांगे कि दिस इज ए स्मॉलेस्ट सब फील्ड ऑफ K जनरेटेड बाय S, स्मॉलेस्ट सब फील्ड ऑफ K कंटेनिंग S नू कंटेन करने लई सब तो स्मॉलेस्ट सब फील्ड होएगी। ये साडे कोल पहली डेफिनेशन। अगली डेफिनेशन सेम, जिथे S एलिमेंट है, S सैट है, तो S सैट नू असी एलिमेंट दे विच अगर लै लीए, सो अगर इफ आई राइट S इज ए सम सेट विच कंसिस्टिंग एलिमेंट A1 A2 A3 and AN, so these are the element of K, remember that these are the element of K, so in that case so it is generated by finite element of K, right? So same definition, so a field K is a said to be finitely generated. Now here I said finitely generated because I can find the finitely element. So a field K is said to be finitely generated over F,
F क्या है? Field. If there exists a finite number of elements A1, A2, An belongs to K such that K is equal to generated by F, A1, A2 and An. So first understand this F, A1, A2, An. So what it means? It means if I write here f of s, yeah, f of a. So f of s means if I write here f of s, if I write f of s, so it means it is generated by f union s, right? So remember, it is a field generated by f union s. So what it means? It means it is generated by f union the set of element a1, a2, a3 and an. So this is a generated by this values, right? So it means it is a finitely generated of these elements. So if S has finite element, so I write it in this way. So we represent K as f of A1, A2 and An. So I repeat again, what is K? So K is generated by f union this element. So this is K. So this is K which is generated by of this element. Now simple extension. So here it is finitely generated definition. And what is the simple extension? If we can find only one element A such that K is equal to f of A for some A belongs to K, then it is called a simple extension. If here the elements are finite, then it is a finitely generated. If element is 1, then it is a simple extension. So these are the basic definition of these values. Now we will discuss some example based on these definition. So first I Q, which is a field of rational number. The statement is show that Q under root 2 which is equal to Q under root 2 plus under root 3. This is it. So what is this? So first is the field. This is a field generated by, so this is a field generated by Q under root 2 and under root 3. And this is the field generated by Q under root 2 plus under root 3. So these are the our question. So we want to prove that left hand side is equal to right hand side. So here we have a lot of questions. So first of all, I discuss our first question. So that is a first question is, now from the first question, Q of under root 2 and under root 3 which is equal to Q of under root 2 plus under root 3. So this is my question. Now as we know that, so here I take first Q under root 2 comma under root 3. So first visualize the element of this field. So these field is nothing. It is generated by Q union set containing under root 2 and under root 3, right? So it means it is a field which containing Q under root 2 and under root 3. So in simple language, this field has 3 set. One is Q, second is element under root 2 and third is element under root 3. Clear?
So if we understand this, so we will prove it very easily. In the same way, you can visualize this field under root 3. So what is this? It is a field whose elements are q under root 2 plus under root 3. तो सानू पता आ कि इस फील्ड दे विच आ तीन चीज़ां होणगियां, ठीक है जी। एक होएगा क्यू रैशनल नंबर का सैट, एक अंडर रूट 2 इरैशनल नंबर, अंडर रूट 3 इरैशनल नंबर, और ये विच दो होणगियां, एक होएगा क्यू, दूजा होएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3. दिस इज a sum as it treated as one element and one set is common, that is a q. सो सानू क्यू बारे चिंता करने की लोड़ नहीं, सिंपल आ दो एलीमेंटां नूं असी इस फील्ड दे विच भेजना और इस एक एलीमेंट नूं असी इस फील्ड विच भेजना, तो दोनों फील्ड साडे कोल बराबर हो जाएंगे। सो पहला तो सब तो सौखा एज अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3 इट बिलोंग्स टू क्यू अंडर रूट 2 कॉमा अंडर रूट 3 इनू बिलोंग करता, और ये फील्ड है, फील्ड होंगी क्लोज अंडर एडिशन। सो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ जोड़ है, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सम है, वो भी इस ਨੂੰ बिलोंग करेगा दिस वैल्यूज, और क्यू ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है इस सैट ਨੂੰ बिलोंग करता ही करता। सो वन थिंग इज क्यू under root 2 plus under root 3 generated is a part of q under root 2 comma under root 3. So इनू मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, राइट। हुण आ गई सैकंड पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट तो असीं बहुत ही सिंपल ढंग दे नाल प्रूव कर सकते सी। सैकंड पार्ट दे विच साडी जरूरत है अंडर रूट 2 ते अंडर रूट 3 नूं भेजना, पर सानू गिवन की दिता है, सानू गिवन दिता अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इट बिलोंग्स टू क्यू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है जी। हुण आपां फील्ड दे बेनीफिट लवांगे। फील्ड दे बेनीफिट दे नाल इहदे विच इहदा स्केयर भी बिलोंग करेगा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 रेज टू पावर 2 बिलोंग्स टू क्यू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, और स्केयर दे बेनीफिट दे नाल व्हाट इज दिस 2 प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 बिलोंग्स टू दिस वैल्यूज, ठीक है जी। इस तो बाद साढ़े को फर्स्ट टर्म 5 हो गई, दूजा हो गया 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, और ये वैल्यूज आ गई क्यू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक। सो ये वैल्यू इनू बिलोंग करती। सानू पता आल्सो वी नो दैट 5 बिलोंग्स टू दिस सेट, क्योंकि 5 रैशनल नंबर आ तो वो इनू बिलोंग करेगा, ठीक है जी। सो 5 भी इनू बिलोंग कर गया, और आ पूरे का पूरा एलीमेंट भी इनू बिलोंग कर गया। सो इन्हां दोनों का डिफरेंस भी इनू बिलोंग कर जाएगा। सो डिफरेंस की बन गया 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ 2 स्केयर रूट ऑफ 3 belongs to q under root 2 plus under root 3, कर गया। फिर देखिए 1/2 भी इनू बिलोंग करता, क्योंकि रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर तो इनू करता ही करता। सो 1/2 दे नाल मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 इंटू 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 belongs to q under root 2 plus under root 3, ठीक है जी। 2 ते 2 कैंसिल हो गए,
तो ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ फाइंड कर लिया कि √2 into √3 belongs to this field। पर मेरी जरूरत ये थोड़ा है, मेरी जरूरत है ਜਾਂ ਤਾਂ मैं 2 √2 ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾਂ मैं √3 ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭੇਜਾਂ। ਭੇਜਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ फाइंड आउट कर ਲਈ, सो ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ अगर ਆਪਾਂ देखिए √2 प्लस √3 यानी कि √2 प्लस √3 ये तो इस फील्ड का हिस्सा है, इस फील्ड का हिस्सा है और आ एलीमेंट भी इन्हू बिलोंग करता, आ एलीमेंट भी इन्हू बिलोंग करता। सो क्योंकि फील्ड है तो इन्हां दोनों का प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा। सो इन्हां दोनों का प्रोडक्ट करो तो की बनिया, पहला टर्म बनेगी 2 √3। ठीक है, इनू ये मल्टीप्लाई किया 2 √3, दूजा बनेगा 3 √2 दिस वन। सो दिस बिलोंग्स टू Q √2 प्लस √3 दिस वैल्यूज आर। फिर देखिए इनू मैं कितना एक्सप्रैस कर सकता, 2 टाइम √2 प्लस √3, √2 एक ज़्यादा मेरे को, सो √2 एक होर ले लिया। ठीक हो गया जी। दिस वैल्यूज इत्थे तक पहुँच गए। हुण देखो √2 √2 प्लस √3 इनू बिलोंग करता। सो इनू अगर मैं 2 नाल मल्टीप्लाई करता तो वो एलीमेंट भी इनू बिलोंग करेगा। जे वो एलीमेंट भी इनू बिलोंग करेगा, सो दिस एलीमेंट बिलोंग्स टू this field, right? And this element also belongs to this field, so difference belongs to this field। if difference belongs to this field, so by using that values √2 belongs to Q √2 plus √3। again this element belongs to this field, so again difference belongs to this field, so here difference is √3 which belongs to Q √2 plus √3। so this element belongs to this set and Q is already part of this field, so it means Q generated by √2 √3 is a part of Q generated by √2 plus √3। so I write it as equation number 2। so from equation number 1 and 2, so we prove that Q √2 √3 is equal to Q generated by √2 plus √3। so in this way we can prove the result of left hand side is equal to right hand side। so this is our first example। so after that, so we go to the previous part। now so next definition after that, an element
A belongs to K. What is K? K is field. Is called algebraic over F. So field ਨੂੰ ਅਸੀਂ algebraic ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ. If there exists a non-zero polynomial. So point याद रखना, non-zero polynomial. और ये polynomial किहदे उत्ते आ? F of x दे उत्ते, यानी इहदे coefficient f दा पार्ट आ, such that fa equal to 0. मतलब a इस polynomial दा रूट हो गया, a इस दा polynomial दा रूट हो गया, जा इस polynomial दा रूट k ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ एलिमेंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ algebraic over f ਕਹਾਂਗੇ. मतलब कि अगर साढ़े कोल के एफ की फील्ड एक्सटेंशन है, ये बारे तो कोई दो राय नहीं है. अगर साढ़े कोल कोई एलिमेंट असी के दे विच लिया और एक ऐसी पॉलिनोमियल असी एफ दे उत्ते लभ सकीए तां जो ए उस पॉलिनोमियल का रूट बन जाए. जे ए उस पॉलिनोमियल का रूट बन जाए, then A is called a algebraic over F. Algebraic over A. So remember, polynomial किधे उत्ते आ? fx उत्ते. मतलब coefficient इहदे किधे विच आ? कैपिटल F च. और A की है? उस polynomial दा root. This is first definition, important definition. Second, तो K नू F ਦੀ ਅਲਜਬਰਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ? K ਨੂੰ F ਦੀ ਅਲਜਬਰਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ every element of K are algebraic over F. ਜੇ K ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ F ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਜਬਰਾਇਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ K ਉਹਦੀ ਅਲਜਬਰਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ. उस तो अगली गल, कोई भी पॉलिनोमियल जिहड़ी है, अगर मोनिक पॉलिनोमियल कदों कहने हैं? अगर उहदी कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एफ एक्स इज यूनिटी हो जाए या 1 हो जाए, या यूनिटी हो जाए हाईएस्ट पावर, उहदा कोएफिशिएंट जिद्दां मान लो कोई पॉलिनोमियल है जिहदी डिग्री एक्स की पावर n है, तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਉਹ 1 ਹੋ ਜਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋ ਜਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਨਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. तो अगली थ्योरम एग्जाम दे विच पुछ चुके हैं, वो साडे कोल थ्योरम की स्टेटमेंट की है? उस थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर मेरे कोल कोई भी एलिमेंट, पहला था ये एग्जाम च आया, इफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू के विच इज अलजेब्रिक ओवर एफ. सो एलिमेंट कोई चूज किया जिहड़ा एफ के उत्ते अलजेब्रिक है, then there exists a unique polynomial, है ना, पॉलिनोमियल तो होनी होनी है, असी px लभ सकते हैं ऑफ पॉजिटिव डिग्री ओवर f सच दैट ये दो कंडीशन सैटिस्फाई करती. पहला कि p ऑफ a 0 हो जाए, दूजा अगर कोई होर पॉलिनोमियल इस कंडीशन को सैटिस्फाई करती है तो px उन्होंने डिवाइड करेगा, px उन्होंने डिवाइड करेगा. सो दिस इज अवर नेक्स्ट थ्योरम. सो नाउ वी डिस्कस दिस थ्योरम. सब तो पहला अपने माइंड दे विच एक चीज़ रखनी कि f तुहाडे कोल छोटी फील्ड है, k बड़ी फील्ड है, यानी f k दी सब फील्ड है, या k f दी एक्सटेंशन है, और सानू दिता कोई भी एलिमेंट a belongs to k. So what is this?
it is a algebraic over f that is given, और given ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾर्ट्स है उन्होंने प्रूव करना। अगर अलजबराइक है तो ਇਹਦਾ मतलब बाय डेफिनेशन ਜਿਹੜਾ a है ਇਹ ਕੀ है, it is a root of some non-zero polynomial over f। तो नैचुरली किसी न किसी नॉन जीरो पॉलिनोमियल का रूट होएगा, तो असी स्मॉलेस्ट डिग्री वाली पॉलिनोमियल चूज कर लीए जिन्हों ए सैटिस्फाई करती होगी। सो मान लो लेट t of x, so which is a polynomial, non-zero polynomial, so which is a non-zero polynomial of smallest degree, और जिन्हों ओवर पहले भी याद रखो f such that t of a equal to 0, ठीक है ना। तो असी सब तो छोटी पॉलिनोमियल साडी गिवन कंडीशन नूं जिहड़ी सैटिस्फाई करदी है वो चूज कर ली। जे चूज कर ली तो नैचुरली वो किसी ना किसी ढंग नाल होएगी। सो मैं ਉਹਦੇ एलीमेंट ਨੂੰ इदा लिख लेना, अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1x कंटिन्यू करते जाओ, और अल्फा n x दी पावर n, एंड दिस अल्फा i बिलोंग्स टू f, पहली गल। दूजा अल्फा n इट शुड बी नॉट इक्वल टू 0, इट इज ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है जी। सो असी इस वैल्यू ਨੂੰ फाइंड आउट कर लिया। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ px जनरेट करनी। सो px कुछ नहीं है, सो px ਇਹਦੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੋਨਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਣਾਣੀ। ਮੋਨਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ मीन्स suppose px which is equal to alpha n inverse t of x आ लै ली। क्यों जी? ताकि असी चाहते हैं कि जिहड़ा आ कोफिशिएंट है ये 1 हो जाए, और 1 कदों होएगा जदों असी अल्फा n इनवर्स नाल मल्टीप्लाई करांगे। तो 1 करन लई असी मल्टीप्लाई कीता, तो साडे कोल px जनरेट हो गई अल्फा n इनवर्स अल्फा 0 प्लस साडे कोल अल्फा n इनवर्स अल्फा 1 x करते जाओ, लास्ट टर्म x दी पावर n। हुण आ इनवर्स एग्जिस्ट करता, क्यों करता? क्योंकि अल्फा n नॉन जीरो एलीमेंट आ, और एलीमेंट किदा फील्ड का, तो इस करके इहदा इनवर्स एग्जिस्ट जरूर करेगा। अगली गल ए इस पॉलिनोमियल का रूट भी होएगा, क्योंकि पी ए बेसिकली आ गया अल्फा n इनवर्स टी ए, और टी ए 0 आ, सो दिस आ गया 0। सो साडे कोल कंडीशन भी सैटिस्फाई कर गया। तीजी गल अगर तुसी चेक करोगे तो डिग्री ऑफ पी एक्स भी n ही होएगी। सो 3 चीज़ां हो गई, पी एक्स की डिग्री भी n हो गई,
और क्योंकि आ एलीमेंट ये सारे दे सारे एलीमेंट फील्ड दे विच चले गए, तो ये पोलिनोमियल भी एफ के उत्ते हो गई। आई इज रनिंग फ्रॉम 0 1 n -1 और तीजा यदि डिग्री भी n के बराबर हो गई। तो असी p of x पहला तो फाइंड कर ली। सो व्हाट इज दिस? इट इज a Monica polynomial of smallest degree over f। पहला साडे कोल कल्ली polynomial of smallest degree सी। हुण असी पी एक्स नू की डिफाइन करता, इट इज ए मोनिक polynomial। पहला वर्ड of smallest degree over f। ठीक है जी, डिग्री सानू पता है दी एन ए के बराबर से। हुण आप अगली कंडीशन ते आ जाइए। आई टेक सम पॉलिनोमियल एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स such that f of a is equal to 0। पहली कंडीशन अज्यूम कर लिया। तो मेरा पर्पस की है? मेरा पर्पस है पी एक्स एफ ऑफ एक्स नू डिवाइड करे इन फील्ड एक्सटेंशन। तो ये मेरा पर्पस है। तो मैं ये डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर। डिवीजन एल्गोरिथम मीनस सिंपल भाषा एफ एक्स नू पी एक्स ने डिवाइड किया, क्यू एक्स क्यूशेंट आ गया और नीचे रिमाइंडर आर एक्स आ गया। और आर एक्स दियाँ दो पॉसिबिलिटीज होंदियां वो आप डिस्कस कर लेंगे। सो देयर एग्जिस्ट क्यू एक्स आर एक्स belongs to fx such that f of x which is equal to px qx plus rx, or where rx जा तो 0 के बराबर है, जा यदि डिग्री जिहड़ी है वो लैस दैन डिग्री ऑफ पी एक्स होगी। ठीक है जी, दो ही पॉसिबिलिटीज है। असी डिवीजन प्रूव करना चाहते हैं। ਇਹਦਾ मतलब जे मैं आर एक्स नू 0 प्रूव करता तो मेरा रिजल्ट हो गया। तो आर एक्स नू 0 प्रूव करने लिए मैं दूजी कंडीशन ते कंट्राडिक्शन लगाऊंगा। मान लो डिग्री of Rx less than degree of Px। Px की डिग्री कितनी सी? n सी। मान लो। Now from this f of a इस इक्वेशन x की जगह तो a ले लिए is equal to p of a Q of A plus R of A। ठीक है जी, सानू पता f of A 0 है, P of A 0 है, so it implies R of A 0 हो गया। मतलब असी एक ऐसी पॉलिनोमियल लभ लई जिहदा A रूट भी है और यदि डिग्री n तो छोटी भी है। सो विच डिस्टर्ब द मिनिमैलिटी ऑफ डिग्री ऑफ पी एक्स। क्योंकि आप तो मान के चले हैं कि सब तो छोटी पॉलिनोमियल जिहड़ी है वो साडे कोल किहड़ी है?
वो साडे कोल PX आ, उस तो छोटी तो हो ही नहीं सकती। तो इत्थे कौन पैदा हो गई? RX। जे RX पैदा होगी तो कंट्राडिक्शन लग गई। जे कंट्राडिक्शन लग गई ਇਹਦਾ मतलब वो रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कौन है? RX इक्वल टू 0। जे RX 0 है तो PX FX ਨੂੰ डिवाइड कर गया। ठीक है जी, क्योंकि वो 0 हो गया, then it divides f of x। ਹੁਣ ਅਸੀਂ यूनिकनेस प्रूव करना, ये तो आप रिजल्ट प्रूव कर लिया। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ आ गई यूनिकनेस ਦੀ। तो यूनिकनेस ਲਈ एक होर पॉलिनोमियल ला लीजिए। मान लो सपोज P1x, ठीक है जी, B another monic polynomial such that P1a equal to 0 और दोनों की डिग्री साढ़े कोल जिहड़ी है P1a equal to 0 और दोनों की डिग्री बारे सानू पता ही है कि n है। सो सेम जो Px का काम कर रही, जो Px काम कर रही सी वही P1x काम करेगी। पहली गल हुण आपां देखिए जी, हुण अपने माइंड दे विच Px नूं जे मिनीमल मनीए तो इनू Fx मनीए, f of a 0, तो की होया सी पिछले रिजल्ट च, यानी इस रिजल्ट च Px ने P1x नूं डिवाइड करता। जदों असी Px नूं मिनीमल या स्मॉलेस्ट डिग्री मोनिक मिनीमल पॉलिनोमियल कह सकते हैं, या मोनिक पॉलिनोमियल ऑफ स्मॉलेस्ट डिग्री मनीए, तो साडे कोल ये कंडीशन पॉसिबल होगी। और दूजे पासे जे P1x नूं मल्लांगे तो साडे कोल दूजी कंडीशन पॉसिबल हो जाएगी। चलो उन्होंने बाद च करते हैं। सो Px डिवाइड P1x, सो इट इंप्लाइज P1x is equal to Px into Lx। Lx कोई होर पॉलिनोमियल आ गई f दे उत्ते, ठीक है जी। और सानू पता डिग्री ऑफ P1x ते डिग्री ऑफ Px क्या है? सेम है। जे सेम है तो साडे कोल Lx पॉलिनोमियल सी Fx दी, जे दोनों की डिग्री सेम हो गई तो साडे कोल व्हाट इज Lx? इट इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। सो L of x नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगी, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगी। जे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गई सो असी इहदा नाम रख दिए C of x। C of x कांस्टेंट टाइप होगी, तो P1x बन गई Cx इंटू Px, दिस वैल्यूज, ठीक है जी। सो दिस वैल्यूज बन गई P1x एंड Px। हुण इत्थे ध्यान नाल समझो, P1x मोनिक पॉलिनोमियल आ, तो इहदा जिहड़ा हाईएस्ट कोफिशिएंट आ वो है 1। इहदा हाईएस्ट कोफिशिएंट भी 1 है, पर टोटल दा हाईएस्ट कोफिशिएंट हो गया Cx। जदों असीं कोफिशिएंट कंपेयर कीते तो Cx की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अगर Cx की 1 आ गई तब P1x तब P of x साढ़े को सेम आ गए। सो विच प्रूव द यूनिकनेस। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਿयोरम ਨੂੰ प्रूव करता। तो नैक्सट ਜਿਹੜੀ अगले क्वेश्चन